Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin, and I've come up with the online class too. And as you know that I have started lecture series on DDA Horticulture Section Officer. So in the previous video, we dealt with the examination pattern and about the job. But today we'll talk about the horticulture at a glance. Then we'll be taking up classification of fruits based on temperature and fruit morphology. So before I start the topic, let me tell you there is one notification which has been highlighted by Delhi Development Officer, this authority. तो जो भी आपकी closing dates थी, they have been changed because of the outbreak of COVID-19. तो जो पहले dates 30 अप्रैल थी, that has been changed to 15th May. और जो फी भरने की डेट थी 4th मई, that has been changed to 20th May. Okay, so you can pause the video and you can go through the corrigendum here. तो अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है they can also fill the form क्योंकि अब ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है. Okay, so let us start the first lecture in the true sense. So you see horticulture. If we look at the etymology या इसका origin देखें तो हमें पता चलता है कि this horticulture word has been derived from two Latin words. How many words? Two Latin words. First one is hortus and the another one is cultura. So hortus means garden and cultura means cultivation. So in the literally meaning, it is the garden cultivation. So horticulture means garden cultivation. But if we talk about the definition of this modern horticulture as such, then it may be defined as the science and technique of production, processing, merchandising of fruits, vegetables, flowers, spices, plantations, medicinal and aromatic plants. So you see, horticulture इन सब चीज़ों से डील करता है. So it is a science or technique for production, processing and merchandising of fruits भी इसमें आएंगे, vegetables, flowers, spices, plantation, medicinal and aromatic plants. Okay. Then moving on, if we talk about the branches of horticulture, so mainly your horticulture has been subdivided into these categories. The first one is pomology. वैसे इसको हम पोमोलॉजी पढ़ते हैं. सो पोमोलॉजी मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स. तो जब भी हम फ्रूट क्रॉप्स की कल्टीवेशन की बात करते हैं, इट इज रेफर्ड एज पोमोलॉजी. देन ओलैरिकल्चर मीन्स इट इज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स. देन इफ यू टॉक ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, तो जब फूलों की बात होती है तो फ्लोरिकल्चर. देन प्लांटेशन क्रॉप्स, तो लाइक cultivation of crops like coconut, areca nut, rubber, coffee, tea and etc. इन सब की जब बात होती है तो we talk about the plantation crops. Then spices, मसाले आपको पता ही हैं, ठीक है. मसाले बहुत ज़रूरी भी हैं इंडियन क्यूजीन के लिए. सो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कार्डमम, पेपर, नटमेग etc. Then medicinal and aromatic plants. तो कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स. एंड यू नो दैट इन दिस टाइम जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा अपना पेंडेमिक फैला चुका है, तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द वेज टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से अच्छा कोई अच्छा मीडियम हो ही नहीं सकता है. ओके. देन पोस्ट हार्वेस्ट. सो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, देन स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग of all these crops which we have talked about. तो ये सारी branches हैं horticulture की. Okay. Then moving on, if we look at the climatic zones of horticultures of India, तो हम देखते हैं कि generally we have divided horticulture crops into 3 climatic zones which are further subdivided into 6 categories. ओके. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो climatic zones है, पहला है subtropical, फिर temperate and then tropical. Then again this subtropical is further divided into 2 categories. This is northwest subtropical and northeast subtropical. Then temperate as such इसका कोई further subdivision नहीं किया गया है. Then tropical की बात करें, yes again it has been divided into 3 categories. तो central tropical, southern tropical and coastal tropical. So आपको ये याद रखना है कि 3 major climatic zones हैं और 6 हमारे कितने हैं, 6 पूरे ऑल टुगेदर हमारी कैटेगरीज हैं आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के क्लाइमेटिक जोन्स की.
ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, उसके बावजूद हम इसे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है कि ये कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी का है। तो अगेन जो टेम्परेचर के बेसिस पे हमने फ्रूट्स को बांटा है, वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहली है ट्रॉपिकल, फिर है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो आप कह सकते हो जो ट्रॉपिकल है जहां पर आपका वार्म टेम्परेचर है, जहां पर आपका ज़्यादा हॉट है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेट उसका अपोजिट होगा जहां पे ठंडे इलाके हैं, ठीक है। एंड सब ट्रॉपिकल इन बिटवीन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो आपको यहाँ पे याद करने हैं, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से फ्रूट्स किस पर्टिकुलर कैटेगरी में पड़ती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल, आम का सीजन शुरू हो सका है आपको पता है, तो मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा जिसे चीकू भी बोलते हैं, देन पाइनएप्पल, कोकोनट, कैश्यू, अरिका नट, देन ब्रेड फ्रूट, जैक फ्रूट एंड एवोकाडो। ये सारी की सारे जो फ्रूट्स हैं दे कम अंडर द ट्रॉपिकल कैटेगरी। देन सब ट्रॉपिकल की बात करें तो गुआवा, ग्रेप्स, सिट्रस, देन डेट पाम, फाल्सा, पोमीग्रेनेट, लीची एंड लोकार्ट, ये किसके अंदर आते हैं? सब ट्रॉपिकल कैटेगरीज के अंदर आता है। देन टेम्परेट की बात करें, देन एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ट्विंस, एप्रिकॉट, वॉलनट, almond, strawberry and cherry. So these are the fruits which come under the temperate category. तो आप यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी भी है। ओके, सो मूविंग ऑन नाउ, बोटेनिकली अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं? अब देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है ट्रू फ्रूट और यूकार्प, दूसरी है फॉल्स फ्रूट और स्यूडोकार्प, देन थर्ड है आपकी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो चलिए, वैसे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एज ए एकेडमिक लेक्चर की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको ज़्यादा फोकस रखना है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपको पहले इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैंने ये वाली स्लाइड इसमें ऐड करी है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करवा सकता था। तो चलिए, सबसे पहली बात है ट्रू फ्रूट की बात करते हैं। तो बेसिकली इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं और जो यू कार्प भी कहलाते हैं, वो क्या है? एक तरह के मैच्योर्ड ओवरी और राइपेंड ओवरी हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हुए हैं। तो आपका मैंगो और ग्रेप दैट कम दे कम इन द कैटेगरी ऑफ ट्रू फ्रूट। देन फॉल्स फ्रूट की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सूडो कार्प है। इट मीन्स दे हैव बीन ड्राइव फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स अदर देन द ओवरी। तो ओवरी के अलावा अगर किसी और फ्लोरल पार्ट से कोई फ्रूट बनता है, दे कम अंडर द फॉल्स कैटेगरी और फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प। तो जैसे अगर बात करें कैश्यूनट पेडंकल से, देन थैलेमस इन एप्पल, पियर, एंड देन इन केस ऑफ फ्यूज्ड पेरियांथ इन मलबेरी। ओके, देन आप देखिए जो जैक फ्रूट है और जो पाइनएप्पल है, ठीक है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉल्स फ्रूट कैटेगरी। क्यों? क्योंकि जो जैक फ्रूट और पाइनएप्पल है, ये पूरा का पूरा एंटायर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे बना होता है। ओके, तो सिर्फ ओवरी से नहीं बना होता है, बल्कि एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से बने होते हैं ये फ्रूट्स। तो इनको भी हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। एंड वन मोर थिंग, फॉल्स फ्रूट्स आपके जो होते हैं उनको हम एसेसरी फ्रूट्स भी बोलते हैं और स्पूरियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर मैंने जो आपके वीडियो लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे, उन पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, बट मुझे लगा ये पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए, ठीक है। देन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की बात करें तो सिंपल है कि ये फ्रूट्स क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। पहली चीज, दीज आर सीडलेस फ्रूट्स दैट आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो आपके सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है। और जैसे कि बनाना, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि पार्थिनोकार्पिकली आप आपके रिसर्चेस डेवलप करने लगे। ओके, सो लेट अस सी कि अगर हम दोबारा बात करें कि अब ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया बोटेनिकली ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। लेकिन अगर अब क्लासिफाई करें हम फ्रूट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, सो वी हैव डिवाइडेड योर फ्रूट्स इनटू 3 कैटेगरीज, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट और इटेरियो फ्रूट्स, देन आपका कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। तो जब सिंपल फ्रूट्स की बात करते हैं तो
सिंपल मतलब सिंपल, इसका मतलब क्या है कि जब एक सिंगल फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम अ सिंगल ओवरी, फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, तो अगर एक सिंगल ओवरी से आपका एक सिंगल फ्रूट डेवलप होता है उसी को हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं. तो एज फॉर सिंपल, एज फॉर सिंगल, तो सिंगल ओवरी से जो डेवलप हुआ है दैट इज टर्म्ड एज सिंपल फ्रूट. देन एग्रीगेट एंड देन एटेरियो फ्रूट्स. तो एग्रीगेट से आपको पता चल रहा है और एटेरियो से आपको पता चल रहा है यहाँ पे एग्रीगेशन की बात हो रही है. तो जो फ्लावर्स जिनमें पॉलीकार्पेलरी होते हैं या फिर एपोकार्पस गाइनीशियम होता है, दे गिव राइज टू नंबर ऑफ फ्रूटलेट्स एज देयर आर नंबर ऑफ फ्री ओवरीज, ईच गिव राइज टू वन फ्रूटलेट. तो अब मुझे पता है कि आपको यहाँ पे पॉलीकार्पेलरी और एपोकार्पस गाइनीशियम का मतलब समझना जरूरी है. तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें कार्पल, ठीक है, या गाइनीशियम एक से ज्यादा हो, पहली चीज, ठीक है. तो जो गाइनीशियम और कार्पल है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, जब फीमेल पार्ट एक से ज्यादा हो तो पॉलीकार्पल, इट मींस अगर सिंगल होता तो मोनोकार्पस होता. ओके, तो पॉलीकार्पस मतलब जिसमें एक से ज्यादा गाइनेशियम हो. और एपोकार्पस का मतलब क्या है कि आपके कार्पल्स तो होंगे एक से ज्यादा, मल्टीपल होंगे, लेकिन वो फ्यूज्ड नहीं होंगे. एपोकार्पस में क्या होता है, फ्यूज्ड नहीं होते हैं बल्कि फ्री होते हैं. तो जब फ्री होंगे तो हर एक की अपनी एक ओवरी होगी, इसीलिए जो नंबर ऑफ फ्री ओवरीज होंगे, उन जितनी ओवरीज होंगी उतने ज्यादा फ्रूटलेट्स उसमें डेवलप होंगे, इसीलिए इसको हम एग्रीगेट फ्रूट्स बोलते हैं. इसीलिए एपोकार्पस का जो अपोजिट होता है दैट इज सिनकार्पस, उसमें जो कार्पल्स होंगे एक से ज्यादा तो होंगे लेकिन फ्यूज्ड होंगे. ओके, तो इसमें फ्री होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर. देन कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स, जैसे कि हमने बात करी थी जैक फ्रूट की, ठीक है, कि अ फ्रूट विच हैज डेवलप्ड फ्रॉम अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस. तो ऐसा फ्रूट जो कि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बना है उसको हम मल्टीपल फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं. ओके, अब जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इस स्लाइड को आप बिल्कुल पॉज करके आपको नोट करना और याद करना है, क्योंकि इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. तो देखिए, सिंपल फ्रूट में सबसे पहले बेरी टाइप. तो बेरी टाइप में आपको एग्जांपल याद करने की, बनाना, पपाया, ग्रेप, सपोटा, एरिकानट एंड एवोकाडो. ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बेरी टाइप में आते हैं. देन फिर बात करते हैं मॉडिफाइड बेरीज की. तो पोमीग्रेनेट का जो फ्रूट टाइप है दैट इज बलोस्टा, ठीक है, बालाउस्टा. देन अगर बात करें वुड एप्पल एंड बेल की, देन एम्फिसार का. देन वाटरमेलन, इट कम्स अंडर पैपो. देन एप्पल, पियर, क्विंस, लोकार्ड, दे कम अंडर पोम. देन मैंगो, पीच, प्लम, बेर, कोकोनट, चेरी, कोकोआ, कॉफी, दे कम अंडर स्टोन और ड्रूप टाइप. देन सिट्रस, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी है, हस्पेरिडियम इसका आपका टाइप होता है, फ्रूट टाइप. सिट्रस के जितने भी होंगे आपके सारे दे कम अंडर हस्पेरिडियम. देन कैश्यू, लीची, चेस्टनट, वॉलनट, पेकानट एंड रामबुटान, ठीक है, ये आपके नट टाइप में आएंगे. देन आंवला, देन कैरम्बोला, ये दे कम अंडर द कैप्सूल टाइप. तो ओके, ये आपको याद कर लेने हैं. ओके, पॉज कर लेनी है यहाँ पे आपको वीडियो और आपको ये याद कर लेना है. ओके, देन एग्रीगेट फ्रूट्स में अगर इफ वी टॉक ऑफ एटेरियो ऑफ बेरीज, तो कस्टर्ड एप्पल इसके अंदर आता है और रेस्पबेरी इसके अंदर आता है. देन मल्टीपल फ्रूट्स में आपका जो साइकोनस एक आपका मतलब टाइप है, उसमें फिग उसका एग्जाम्पल है. और सोरोसिस में आपका जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबरी और ब्रेड फ्रूट. तो ये आपका बेस्ड ऑन फ्रूट मॉर्फोलॉजी है. This is very important. Again, I'm highlighting this point. Okay, so this is all about the day. I hope you have liked the lecture. अगर आपको ऐसी lectures और चाहिए तो do comment, do subscribe. अपने फ्रेंड से बोलिए कि DDA के जो सेक्शन ऑफिसर के ऑनलाइन क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं अब प्रॉपरली. ठीक है, तो और कुछ आपको अगर रिक्वायरमेंट है किसी लेक्चर में तो डू टेल मी गाइज. So this is all for the day, and do not forget to press the bell icon. Do like, share, comment and subscribe my YouTube channel Agro Tutorial, and stay safe and stay at your home. Thank you very much class.